Good afternoon, everyone. Welcome to the 6th Annual Day celebration for iSaksham. John F. Kennedy once said something that very aptly sums up why we are all gathered here today. He said, and I quote, "One person can make a difference and everyone should try." I am Ronita. I am an ex-McKinsey colleague of Aditya, and I have been associated with iSaksham since its inception. To be honest, even before that, in different roles. I still remember the dinner table conversations with Aditya several years back, when we were discussing the state of education in Bihar. At that time, he was posted as a Prime Minister's Rural Development Fellow there. And that feeling of helplessness and being sad about the situation. But thankfully, unlike several armchair critics, Aditya, Ravi, and Shravan didn't let their dejection become a reason for doing nothing. But instead, they turned that inkling feeling that something is not right into an opportunity to become a change agent. With iSaksham, they cast the stone in water that created many ripples. And today, 6 years down the line, the only feeling I have moderating this event is of immense pride. Pride that we have been able to make a difference. Pride that we have taken that small step towards a community-wide change. And overall, hope that this small step will translate into a full-blown marathon. I thank all of you for joining us today. This journey truly would have not been possible without your support. I thank all our friends, teachers, mentors, supporters, and last but not the least, our team members for being part of this beautiful adventure. I am happy to see some old faces and new faces here today as well. And for our new guests, let me quickly share a brief about iSaksham. At iSaksham, we build a cadre of community edu leaders. Now, who are these edu leaders or education leaders as we call them? They are nobody but young girls or the youth from the villages of Bihar. They have either just passed out from school, sometimes they're even in school in higher classes, or they are pursuing their graduation. And one thing that is common among all of them is that passion that they carry for education, for not stopping their learning and making sure that the children in their community gets that education as well. We today have the opportunity of meeting quite a few of them here. Our 2-year fellowship program enables these youth to bring about a change not only in themselves, but also in their surroundings. So it basically focuses on 3 things. One is building the capacity of these community edu leaders, their own personal growth. The second is enriching the learning experience of the children. And the third, as we truly believe that no change is possible till the time the community takes ownership. So the third role is around strengthening that community engagement and that community participation. As of today, there are 5,000 plus children receiving quality education through the iSaksham program. There are 180 edu leaders, 130 government schools plus learning centers where we've able to make a footprint. 60% of the children have shown improvements in their learning outcomes. 90% of our alumni are growing as educational professionals. And from our existing batches, already 7 alumni pursuing higher education in some of the most prestigious universities of the country. I take this opportunity to thank all our supporters and partners. And as I said, this journey truly wouldn't have been possible without all of you. And finally, thank you to our mentors and guests who have taken out time today to spend some of their precious times in guiding us and leading us. For today's session, we will first hear from our hearts on the ground, as I call them, who are our edu leaders and alumni, who are making the real difference. We will also have a keynote address from one of our board members, Mr. Shomen Biswas. This will be followed by breakout sessions specific to 3 topics on edu leaders, government schools, and our children and community. We will then have a short debrief from the breakout sessions
sessions in the broader group before we end today's session. Now I hand over the stage to Achal, from our second batch, and now an iSaksham team member. Over to you, Achal. Thank you, Dee. और मैं सफर अपनी आस्था है। मैंने 2018 में iSaksham सेकेंड बैच से जुड़ी थी और मैं अभी iSaksham टीम की सदस्य हूँ। हमारा उद्देश्य भी है कि हमारी जैसी युवाएं जो पिछड़े इलाकों से आती है उन्हें कम्युनिटी एडो लीडर के रूप तैयार करना, साथ ही वही कम्युनिटी एडो लीडर अपने आसपास के विद्यालयों में बच्चों को नवीन शिक्षण प्रणाली हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके और साथ ही मैं पढ़ने से पहले मैं गांव में बच्चों पढ़ाती और हमारा शिक्षा एक अदाब था। मैं शिक्षा के माध्यम से खुद और अपने समाज को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कार्य को लेकर मुझे लगता कि जो कर सकती है वो क्यों नहीं लड़कियों को दिया जाता है वो काम करने के लिए, उन्हें मार्केट अकेले आने के लिए नहीं दिया जाता, वो जो आते हैं उन्हें के लिए नहीं दिया। 3 जुड़ने के बाद मेरे पढ़ाने के देखने के नजरियों में काफी बदलाव आया। मैं सक्षम उस टाइम पढ़ने के लिए साइकिल से आती थी और मैं उस समय से अपने गांव में ये देख पाई हूँ कि हमारी ऐसी कई युवाएं गांव की है जो अपने कार्य को खुद, वो तकनीकी बाजार कार्य सीखना हो गया या कोई अपने कार्य को करना हो गया, एग्जाम्स देना हो गया, वो अपने कार्य को खुद कर पाती हैं। साथ ही मैं खुद में भी ये देख पाई हूँ कि मैं जिस तरह से थी कि अगर कोई सामने खड़ा कर देता था तो बोलने के शब्द नहीं रहते थे कि मैं क्या बोलूं। तो अभी है कि मैं सेशंस को भी फैसिलिटेट करती हूँ और मैं आज आप सभी के सामने भी हूँ। मैं खुद में भी एक बदलाव देख पाई थी और हम जैसे छोटे छोटे एडल्ट्स के हैं और मुझे उम्मीद है कि यह छोटे छोटे करते हैं और iSaksham के कोई भी सेशंस हो तो हम लोग चेतना गीत या एक्टिविटी से शुरू करते हैं। करेंगे तो सभी अपने वॉइस को म्यूट रखिए और तो चलिए शुरू करते हैं। खुलेगी चमकेगा तारा, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा। जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, कभी ना ढले जो वो ही सितारा। दिशा जिससे पहचाने संसार सारा, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा। जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी। किसने लिखी है नहीं जानना है, हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी। किसने लिखी है नहीं जानना है, सुलझाने उनको ना आएगा कोई। समझना है उनको ये अपना कर्म है। अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद का अपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा सरारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा।
जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कैसा लगा आप सभी को? आप लोग चैट बॉक्स पे बता सकते हैं आप लोगों को कैसा लगा। तो जिस तरह से आप लोग चैट बॉक्स पे बता सकते हैं, बढ़िया। तो जिस तरह से इस चेतना गीत में कई सारे अक्षर और शब्द मिलकर हमारी शक्ति और डिटर्मिनेशन को दिखाती हैं, उसी तरह से हमें खुद के अंदर भी विकास करते रहनी चाहिए। और इसी तरह के कुछ पहल और अनुभव हमारे एडू लीडर्स के हैं। मैं आगे के लिए सोमेन सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो सोमेन सर के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। सोमेन सर 35 वर्ष से अधिक डेवलपमेंट का अनुभव रहा है। सर इरमा के अलुमनाई भी हैं और सर प्रदान संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। सर शुरुआती दिनों से आई सक्षम को गाइड करते आ रहे हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि आई सक्षम के बारे में अपने आइडिया को बताएं। तो सर प्लीज। Hey Anchal, it was very nice of you. I don't know whether it is a keynote address or whatever you may call it. I thought I would take this opportunity for these few minutes to narrate my experience of iSaksham. And more of that is from the very early days when iSaksham was not born. So that's what I would like to share for a few minutes, and what struck me and what I think is the spirit of iSaksham. It happened like this. I finished my tenure in Pradhan, where I was working, and joined the ministry, basically from UNDP, as a consultant to the National Rural Livelihood Mission. And at that time, the NRLM had created what was called Prime Minister's Rural Development Fellowship, PMRDF. 2 batches happened. University educated, bright, motivated people, quote unquote, would be taken as fellows for a tenure of 3 years. They would be placed with district collectors in very underdeveloped districts, basically the districts where in the central India, where there is a problem of ultra-leftist activities and so on and so forth. So basically these fellows were supposed to improve the outreach of the district administration. Now I was given charge to kind of help the ministry run this program. And when I came, there was this another, in fact, who was in the ministry, a joint secretary, Dr. Santosh Mathew, who happened to be also a Bihar cadre officer. So as I, looked at where the fellows are and how they are doing, it attracted me these 3 people in Jamui and Munger, Shravan, Aditya, and Ravi. They came from very different backgrounds, but just being together in 2 adjoining districts, and because of the similarity of their motivation, they started doing something in these areas which most others did not venture out to. Basically, how to change the education in Bihar. And as I was interested to look at how these fellows are doing, I also got the support of the joint secretary there, Dr. Mathew, who also found this idea so interesting. And that time there was no iSaksham or nothing that was being done there. Basically, I saw these people, and I did visit twice, and found that these people have just created their own pathshalas, where they would stay, they are bringing in the local very young children
for them to get further education, studies and coaching and tuition and so on and so forth. But if you would visit them, you would see the kind of the spark, the charge, the enthusiasm in them. And then, so once I visited there, I thought that if they would like to do something, it is at least whatever little I can do, I should be doing for them. And we used to share this, what was happening in Munger and Jamui, and not just the good things, but also the bad things about I would hear the stories of exploitation of the young girls in Kasturba Vidyalaya. And these 3 of them were so helpless. The collector often would not be cooperating. And I mean, you know, the kind of stories that happens in these kind of situations. And it was a struggle. Often in the ministry, we would find out what we can or cannot do in these kind of situations where we can see the kind of exploitations happening in some places. Anyway, so then it happened that they decided to create an organization. But then since they were PMRDF, it was not possible for them to create an organization. So, you know, you can say that basically in the ministry and these 3 fellows actually did conspire to create an organization. So we decided, look, you are nowhere. You do everything, but you are not holding any position. So Ronita would be the CEO and I would be a board member, and you do work whatever you are doing, but you don't be in the organization. Because we needed to expedite. They were not ready to wait till their fellowship was over to create a new organization. The early that you could do, the better, because they anyway were so charged to create that organization. So we actually got hold of the chartered accountant and to create the bylaws, and then I became on the board. Ronita took over as the CEO. And these fellows were doing whatever they wanted to do, basically fooling, at least particularly the people. There was a bunch of officers in Kapat who tried to find every loophole of these fellows and would just create a note so that the fellows could be harassed. So thankfully that they did not get a chance for in this. Now came the question, oh, how do you find money to do it? And let me tell you, this ends the NSDC, National Skill Development Corporation, and Dr. Sunil Arora, who is now the Chief Election Commissioner, was holding the chairperson of the NSDC at that time. And Ravi and I, of course, Ravi did the presentation. I only sat through, and that presentation was so good that the Sunil Arora was gaga about it. But what was the presentation? The presentation was to create basically entrepreneurs who are running tuition centers currently. So the NSDC said that this tuition could be a kind of an enterprise, and why don't you develop this as an enterprise? And money came quite soon. Never expected that a very new organization without any credential would be given a grant by NSDC. That's not what NSDC does these days. That was the beginning of the journey where iSaksham wanted to kind of, NSDC wanted them to create education entrepreneurs. So from tuition entrepreneurs to edu leaders is a long journey. Even though the time-wise it is short, 2015 to 2021, but the kind of events, processes that has happened in between in these 6-7 years is mind-boggling. And the idea has evolved to actually take it to the more and more depth of development. And I get amazed that, you know, these 3 being together, and actually they are what the PMRDA was supposed to be. Everybody, but here is a shine. Showman sir, you will have to unmute yourself. Sorry, I think the host muted everyone else.
Oh, sorry. Anyway, I don't know when I got muted. I think so what I wanted to say was that even though in terms of time span, the journey of iSaksham is so short, 2015 to 2021, but the kind of events, processes, and various kinds of innovations and creativities which has shown in this time, it actually is much more than what could have normally happened in 5-6 years. So that's my take of the iSaksham. I actually, when I go there and when I see what they're doing, and I still go there. Last year couldn't go because of this COVID, but it gives me a kind of a spark. It gives me a charge to actually, then I can see that I got some energy to come back, and my work became better. That's iSaksham to me. So I go there to get myself charged. Thank you for. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विश्लेषण से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। थैंक यू सर। तो iSaksham के कार्य मुख्यतः 4 स्तंभों पे होती है। वह स्तंभ है हमारे बालक, समाज, विद्यालय और हमारे एडू लीडर। iSaksham इन सब के साथ मिलकर आप सभी के बीच अभी यहाँ पे कार्य को, अनुभवों को साझा करेंगी। मैं अपने कलीग स्मृति को आमंत्रित करना चाहूंगी कि एडू लीडर के कार्य के दौरान उन कार्य कौन से ऐसे कार्य हैं और उसके द्वारा किस तरह के कार्यों को संभव हो पाया है, उनके अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगी। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ स्मृति को। स्मृति प्लीज। थैंक यू आंचल। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम स्मृति है और मैं iSaksham अलुमनाई भी हूँ। मैंने अपनी फेलोशिप 2019 में पूरी की और अब मैं iSaksham में सदस्य हूँ, जहाँ मेरा काम एक बडी का है। जो एडू लीडर हमें ज्वाइन करते हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ। तो पिछले साल कोविड की वजह से काफी चुनौतियां पैदा हुई और लोगों के स्वास्थ्य और जीविका में काफी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी ओर हमने अपनी ताकत को पहचाना, सभी ने मिलकर इसका सामना किया और इस मुश्किल समय में मैं कामना करती हूँ कि सभी इससे उभर पाए और आगे बढ़े। 2020 और 21 हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष रहा, क्योंकि जहां हम अपनी बहुत सी छिपी हुई स्ट्रेंथ के बारे में जान पाए और इन सभी के बीच हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे लिए ये साल जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और इतना घटनापूर्ण हो सकता है। इस वर्ष में हम 70 एजू लीडर से 180 एजू लीडर्स हुए और उनकी ताकत में वृद्धि हुई। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी लीडरशिप को पहचाना। महामारी के इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो उनसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें। इसके लिए उन्होंने अलग अलग कदम उठाए, जैसे फोन के माध्यम से पढ़ाना, बच्चों को फोन के माध्यम से कहानी सुनाना। जो बच्चे फोन के माध्यम से नहीं जुड़ रहे थे तो उनको वर्कशीट देना, लाइब्रेरी बुक देना और अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाना। इसके साथ साथ पेरेंट्स से भी वो ऑनलाइन जुड़ते रहे। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, इसके बारे में तान्या और बच्चों ने कैसे इसमें पढ़ाई की, इस स्ट्रेटजी को तान्या आगे डिस्कस करेगी। तो ये साल हमारे लिए स्पेशल इसलिए भी रहा क्योंकि हमें एडू लीडर्स की लीडरशिप क्लासरूम से बाहर भी देखने को मिली, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो वर्ष के दूसरे भाग में हमने अपने एडू लीडर को लोगों के दैनिक जीवन, खुद की चुनौतियों को हल करने के लिए उनके समुदाय में उन्होंने कुछ साहसिक कदम उठाए। तो मैं एक 2-3 स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। तो मैं बबीता के बारे में बताना चाहूंगी। उनके क्लासरूम में बच्चे रेगुलर नहीं आते थे, तो उन्होंने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चे जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने चले जाते थे, क्योंकि उनके घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। तो बबीता ने गांव में लोगों से बातचीत की और उन परिवार में एलपीजी कनेक्शन दिलवाया, जिससे बच्चे पढ़ पाए। इसी तरह एक एडू लीडर मुजफ्फरपुर से रूपा है, जो जहां वो पढ़ाती थी वहां पे सामुदायिक कक्षा में बाहर में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने अपने समुदाय में बातचीत की और वहां पर पानी पीने के लिए सुविधा करवाई। इसके साथ साथ मैं एक एडू लीडर अलका के बारे में बताना चाहूंगी, जो उनके पड़ोस में कक्षा 8 और 9वीं की बच्चियां थी, जिनके वो पढ़ना चाहती थी लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी शादी करना चाहते थे। तो अलका ने जिस तरह वहां पे लीडरशिप का रोल निभाया, उन्होंने पेरेंट्स से बातचीत की
और बच्चियों की पढ़ाई के लिए उन्हें कन्वेंस किया। तो जिस तरह अलका ने कदम उठाए और अलग अलग हमारे एडू लीडर्स ने किया, तो हम इस तरह की फौज तैयार करना चाहते हैं जिससे एक मजबूत कैडर का निर्माण हो। इसके लिए हम अपने अलुमनाई प्रोग्राम को और मजबूत करने के लिए अलग अलग हमने 3 कदम उठाए, जिसमें है हायर एजुकेशन, एजुकेशन प्रोफेशनल और कम्युनिटी चेंज एजेंट, जिससे एडू लीडर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं नलिनी दीदी के बारे में बताना चाहूंगी, जिन्होंने फेलोशिप के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से डांस मूवमेंट थेरेपी में डिप्लोमा किया। इसके साथ अभी वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में MA इन एजुकेशन कर रही है। तो आने वाले समय में हमारे एडू लीडर्स इस तरह से एक बड़ा कैडर का हिस्सा होंगे और इसे हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमें इसमें और गाइडेंस चाहिए। तो ये तो हमने अपने एडू लीडर और हमारे अलुमनाई के बारे में जाना। अब मैं तानिया को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो हमारे सफर पर चर्चा करने के लिए मैं उसे इनवाइट करना चाहूंगी। सो ओवर टू यू तानिया। थैंक यू स्मृति। हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम तानिया परवीन है और मैं मुंगेर के एक छोटे से गांव सरादी से हूँ और साथ ही मैं आई सक्षम फेलोशिप के फर्स्ट बैच की अलुमनाई भी हूँ। मेरे फेलोशिप करने का पर्पस ये था कि मैं अपने गांव के लड़कियों की भी शिक्षा में सुधार लाना चाहती थी, क्योंकि मैं देखती थी कि लड़कियों का इन सारी चीज़ों पे बहुत ही कम इनरोलमेंट होता था। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। वहीं मैं बच्चों के बारे में बातचीत करूँ तो हमारे इंटरवेंशन में हमारे 16 हमारे बच्चे हैं और इस जो हमारा 2020 का जो 2020 से लेकर अभी तक का जो समय था, इसमें मैंने बच्चों को बहुत ही बदलता हुआ पाया है और बहुत ही आगे बढ़ता हुआ पाया है। मैंने देखा कि जब मार्च में लॉकडाउन लगा था तो हम लोग जितने भी लोग थे, तो हम लोगों ने आसपास देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पाया कि बच्चे क्या कर रहे थे कि आपस में बातचीत कर रहे थे और जो बड़े बच्चे थे वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। वहीं आप लोगों को पता ही है कि कभी लॉकडाउन टाइम में खुल रहा था, कभी बंद हो रहा था, तो उन लोगों को उनके किताबों से पढ़ाना तो थोड़ा मुश्किल था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा उनको दिया जाए कि वो खुद करके सीखे और सिर्फ वो एडू लीडर्स से ना पढ़े बल्कि अपने फैमिली मेंबर जिनके साथ वो रह रहे हैं या अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने दोस्त के साथ या फिर अपने आसपास की चीज़ों से वो पढ़े। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराना उनको शुरू किया। तो हम लोगों ने सच में वैसा ही पाया कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से सीख रहे थे। आप लोगों को पता है कि सारी चीज़ें बंद थी लेकिन दुकान खुली हुई थी। तो बच्चे ने क्या किया कि दुकान में जाकर वहाँ का जो तराजू उनका टंगा हुआ रहता था उसको देखकर आए और क्लास 2 और 3 के बच्चे तराजू बना रहे थे और उसको तौलना सीख रहे थे कि कैसे सामान को तौला जाता है। वही क्लास 4-5 के बच्चे क्या कर रहे थे कि उस टाइम में न्यूज़ चल रहा था बहुत ज़्यादा, वो मोबाइल पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा देख रहे थे न्यूज़। तो उन्होंने क्या किया, खुद का अपना एक कैमरा बनाया, खुद का अपना एक माइक बनाया और मीडिया का रोल प्ले तैयार किया। तो वहीं पे दिख रहा था कि बच्चे तो एक तो क्रिएटिव हो रहे हैं और साथ ही उनको आसपास की जानकारी भी हो रही है। वहीं जब थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई और बच्चे अपने क्लासरूम में आए तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चल रही थी वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में तब्दील हो गई थी। जब एडू लीडर्स उनको पढ़ा रहे थे अपने ही तरीके से, तो वो अपना ही जुगाड़ लगा रहे थे इस तरह से कि जो भी चीजें उनके पास थी जो वहाँ पे मौजूद थी, जैसे कि मटर के छिलके हो गए, गेहूं के दाने हो गए, तो इस तरह की चीजों को क्या कर रहे थे, वो खुद से अरेंज करके शब्द बना रहे थे, अक्षर बना रहे थे और उसको सीख रहे थे। वही हम छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। बच्चों के चप्पल जो वो पहन के आते हैं, तो वो क्या कर रहे थे कि जो शेप वो अपने क्लासरूम में पढ़े थे आकार के बारे में, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे शेप्स में ही अपने चप्पल को रखा। कभी वो ट्रायंगल बना रहे हैं, कभी वो सर्कल बना कर रहे थे। वहीं जब उनको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया गया तो वो क्या किए कि अपने गांव में एक्सप्लोर किए जा जाके और वहां से अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़कर लाए और अपनी कॉपी में लगाए और अपने पेरेंट्स से पूछे, मम्मी पापा ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये तुलसी है, ये पपीता का है। तो वो उसको नीचे में उसके लिखते गए। तो इस तरह की चीज़ों को वो कर रहे थे अपने क्लासरूम में। वहीं हमारा इंटरवेंशन
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्लास 6 से 10 तक की बच्चियों के साथ भी हैं, जहाँ पे हमारी एडू लीडर्स उनके साथ भी काम करती हैं। तो उस टाइम में क्या था कि स्कूल्स के जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं एडू लीडर्स के तो घर के आसपास के ही थे, लेकिन जो केजीबीबी के बच्चियां थी वो अलग अलग ब्लॉक से थी, तो उन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था, ये सब चीज़ें कराना उनसे उनके साथ मुश्किल था। तो हम लोगों ने क्या किया, उन तक टैब पहुंचाया, लैपटॉप्स दिए, और वो थोड़ी बड़ी थी तो वो एक दूसरे के सहायता से भी पढ़ पाई, तो इस तरह से उनका पढ़ाई भी जारी रहा। वहीं मैं अगर बात करूं, मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि जब से मैं पढ़ा रही हूँ करीब 3 साल हो चुके हैं, और जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे बच्चे हमारे साथ बिल्कुल खुल रहे हैं, वो अपने इमोशंस को, अपने को जो भी चीज़ वो चाहते हैं वो हमसे शेयर करते हैं। वैसे ही जब हम लोग उनको दाम कितने करके एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें क्लास 2 के राम ने कहा कि उनको हम लोगों ने कहा कि बाबू आपको जो है ना दुकान लगाना है और चीज़ों को बेचना है ताकि वो दाम सीख पाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, मैं दुकानदार नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे डीएम बनना है। तो इस तरह के एस्पिरेशंस को वो हमारे सामने रख रहे थे कि मुझे ये बनना है। तो वहीं से ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट करें जिससे वो और भी ज़्यादा अपने एस्पिरेशन तक पहुँचने में उनको ईजिली वो पहुँच पाए। वहीं क्या हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या यही बच्चे हमारे कल के एडू लीडर्स हो सकते हैं। तो वैसे ही हमारे बैच में ही संजय सर थे जो अपने केंद्र में पढ़ाते थे, तो उनकी ही स्टूडेंट सुगम आज हमारे बैच 3rd की एडू लीडर हैं, और उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, फेलोशिप तो इस बार ही उनका कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग और भी बच्चों के साथ इस तरह का सोच सकते हैं। अगर मैं इस पूरे साल को सोचूं तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती है इस चीज़ को सोचकर कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, इस तरह की चीज़ें बिल्ड हो रही हैं और बिल्ड हुई है इस दौरान भी। लेकिन जैसे ही हम लोग जब क्लासरूम में बच्चे आने लगे हैं और हम लोग अलग अलग तरीके से उनको पढ़ा रहे हैं और एसेस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जो उनका लर्निंग लेवल था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। तो यहीं से मुझे हम लोगों को लगता है कि हम लोग ऐसा और क्या कर सकते थे जिससे ये जो गैप है वो भी भरा जा सकता था, या जब अब क्लासरूम में बच्चे आ रहे हैं तो हम लोग और क्या करना चाहिए, इसे और थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और थोड़ा सा बात करूंगी कि बच्चे जहाँ से आते हैं या बच्चे जहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए वो है स्कूल, और स्कूल में सबसे बड़ा रोल होता है टीचर्स का। तो जब हमारे एडू लीडर्स स्कूल में जाती हैं और कभी टीचिंग मटेरियल का यूज़ करती हैं, कभी एक्टिविटीज़ से पढ़ा रही हैं, कभी टैब से पढ़ा रही हैं, तो इस तरह की चीज़ों को वो जब पढ़ाती हैं तो जो स्कूल्स के टीचर होते हैं वो हम पूछते हैं हम लोगों से कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ लोगों से तो कम का इंटरेस्ट दिखता है उन सारी चीज़ों में, और जो उनके पास भी एक्सपीरियंस होता है वो हमसे वो साझा करते हैं कि। तो वहीं पे हम लोगों को लगा कि अगर टीचर्स को भी ऑन साइट सपोर्ट मिले तो ये जो उनके पास जानकारी है या उनको जो मिल रही है जानकारी, वो अपने क्लासरूम में अगर इसे इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो आप लोगों को भी पता है कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग जुड़े हैं, और खासकर 1 महीने पहले ही हम लोगों ने आगा खां के सपोर्ट से मुजफ्फरपुर में कुछ टीचर्स को प्रशिक्षण दिया, और जब प्रशिक्षण समाप्त हुई तो उनका जो एक्सपीरियंस आ रहा था, वो जब अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि जिस तरह की जानकारी हमें मिली है और वो जब हम अपने क्लासरूम में करा रहे हैं तो बच्चे को वो चीज़ें बोझिल नहीं लग रही है, बच्चे बोर नहीं हो रहे हैं। अगर बच्चे को बोरिंग नहीं लगेगा वो पढ़ाई, तो जाहिर सी बात है कि अटेंडेंस अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ों को हमें और भी ज़्यादा जो जिस तरह की सिनर्जी हम लोगों का है उसे और भी ज़्यादा हम लोग आगे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो थैंक यू। मैं बस एक जो मैंने शुरू में ही बोला कि मैं सराधी से हूँ, मुंगेर के। तो ये गांव जो मेरा बसा हुआ है एकदम चारों साइड से पहाड़ है, और ये गांव वहीं पे बसा हुआ है, और उस चारों साइड पहाड़ में कुछ खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं। तो अगर सिचुएशन ठीक हुई तो मैं आप सभी को इनवाइट करूंगी कि प्लीज़ मेरे गांव आए और हम लोग यहाँ पे जरूर चलेंगे घूमने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोगों ने बच्चों के बारे में सुना,
और कहीं ना कहीं इसका पार्ट कम्युनिटी भी है। तो हमारा कम्युनिटी के साथ कैसा एंगेजमेंट रहा हम लोग सुनेंगे सोनम से। सोनम, ओवर टू यू। थैंक यू तानिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सोनम भारती है और मैं आई सक्षम फेलोशिप के फर्स्ट बैच की अलुमनाई हूँ। मैं मुंगेर के एक छोटा सा गांव दनियालपुर से हूँ। मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग SC/ST कम्युनिटी के हैं और वहाँ के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ईंट भट्टी पे जाते हैं। एक इसे कहा जाए एक वर्ड में तो यहाँ चाइल्ड लेबर की समस्या है और यह जरूरी था कि बच्चों को जरूरी था कि पेरेंट्स को शिक्षा के प्रति अवेयर करें। और इस दौरान मैंने फेलोशिप ज्वाइन करी और प्राथमिक विद्यालय दनियालपुर में पढ़ाना शुरू करी। और जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रही थी तो मुझे ये लगा कि क्लासरूम में पढ़ाने से इन सारी चीज़ों को नहीं बदला जा सकता है। और मैंने पेरेंट्स के बीच गई। पेरेंट्स के बीच जाने से मैंने सारे बच्चों को तो ईंट भट्टी पे जाने से तो नहीं रोक पाई, लेकिन हाँ 2-4 बच्चों को रोक पाई। लेकिन अब मुझे ये सोचना है कि बाकी बच्चों को कैसे रोक सके। इसके साथ साथ जब उसी दौरान मैं पेरेंट्स से बात करती तो वो शाई महसूस करती और खुद को नॉलेज को लेकर के वो पिछड़ा महसूस करती थी। और पिछले 3 सालों में स्पेशली इन दिस लास्ट ईयर मैंने इन सारी चीज़ों में कुछ पेरेंट्स को बदलते देखा। उनके माइंडसेट को लेकर PTM एंड पेरेंट्स सेशन में नंबर ऑफ पेरेंट्स इंक्रीज होते देखा और वहाँ पे शिक्षा के प्रति बढ़ते इंटरेस्ट को देखा। और पिछले साल एक चीज़ हमने यह भी नोटिस किया कि जो मदर एंड यंग मैरिड वुमेन है वो अपने घर के काम से कुछ अलग सीखना चाहती है, अपने घर के डेली रूटीन से बियॉन्ड जाकर कुछ अलग सीखने की जुनून है। इस सब के आधार पे हमने फेलोशिप प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव किया और वहाँ पे मैंने मदर एंड यंग मैरिड को रिक्रूट किया, जिस वजह से आज हमारे 5th एंड 6th बैच में 40% वुमेन है। और हमारे साथ ऐसे ही एक एडू लीडर मोना दीदी है जो एक एडू लीडर भी है और साथ ही बैच 3 की एडू लीडर श्वेता मधु की माँ भी है। और ये दोनों माँ बेटी मिलकर अपने समाज में बच्चों की शिक्षा में इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है। और मोना दीदी एक ऐसी एडू लीडर में से एक है जो अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस की जर्नल डेली लिखती है और इनकी डायरी 150 पेजेस की लंबी है। और इसी सब के आधार पे हमने पेरेंट्स के साथ मंथली ट्रेनिंग पायलट करना शुरू किया ऑन यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड्स, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर वो आसपास की चीज़ों से बच्चों की लर्निंग में इम्प्रूव कर सकते, हेल्प कर सके। इस सेशन के बाद हमने 1-2 बदलाव देखा कुछ पेरेंट्स में कि पहले जो पेरेंट्स थे वो सोचते थे कि हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो हम बच्चों की शिक्षा में कैसे मदद कर सकते हैं, उसको हम क्या बता सकते हैं। लेकिन अब जब वही चीज जब निकल के आता है तो जो पेरेंट्स खुद नहीं पढ़ी होती हैं वो खुद बताती हैं और वो दूसरे पेरेंट्स को मोटिवेट करती है कि हाँ आप कर सकती हैं। ऐसा ही एक पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़ी हुई भी है राधा देवी, वो एक दिन मैंने पिछले महीने ही मैंने TLM के बारे में बताया कि हम कैसे अपने घर पर जो भी सामान है उसके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस सब के आधार पे ट्रेनिंग से थोड़ा देर निकल के राधा देवी गई घर से और चना लेकर के आई और वहाँ पे उन्होंने मौजूद सारे पेरेंट्स को बताया कि हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं, चित्र देखकर हमने वहाँ पे चना से अलग अलग चीजों से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा कि कुछ पेरेंट्स में आ रहा है, लेकिन एक चैलेंज चुनौतियां ये भी आ रही है कि बाकी जो पेरेंट्स है, जो पेरेंट्स नहीं आगे आना चाहती है, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। ये हमारे साथ एक चैलेंज आ रहा कि आगे फर्दर कि पेरेंट्स खुद जो समाज है कम्युनिटी खुद जो है एजुकेशन में चेंज ला पाए। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सोनम, आप लोगों की कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगा और आप लोगों ने इतने अच्छे से बताया कि मतलब हम ऑलमोस्ट उसको विजुअलाइज कर पा रहे थे जैसे हमारे आंखों के सामने वो चल रहा है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से आप लोगों ने उभर के लाए। It was heartening to hear their journeys, and I think clearly we can see 3 trends kind of coming out of this. Firstly, the personal growth of these young girls, right? From
when they had joined us till now, the confidence of them in themselves, in facing an audience, which we can just see, and also ready to face in life. Aspect of the campus community में देखा कि अब जो इसके elders भी हैं वो भी उस लड़की को, so I think that is a big shift that we have seen. The second, I would say, is the shift in the children's learning itself, be it the realization or the importance of education classes or even the learning outcomes. And thirdly, somewhere the community is slowly starting to wake up and this one is about roadblocks. Well, I would call them speed breakers, really, not roadblocks. And the first thing that we've seen is the challenge of how do we keep the motivation and drive alive in our edu leaders after the 2-year fellowship, right? We want them to continue on their journey of personal growth and make difference in the education space of their community. So that is the first thing. The second is considering the reality on the ground, and we just got a very, very short glimpse of it. We need to scale up faster while ensuring that the quality and intensity of our program is intact. So I think as we are also growing as an organization, these are the two broad questions that we need to answer. I now hand over to Nalini. I think Smriti ne hame Nalini ka story already sunaya. She's completing her PG and now getting ready to become a teacher in Western UP. She will be conducting a short 5-minute energizer, after which we will be moving into our respective breakout sessions. Over to you, Nalini. Thank you, Ronita. Hi everyone. मेरा नाम नलिनी है. ऑलरेडी रोनिता और आंचल ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया. तो अभी हम एक थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे क्योंकि अभी ये दिन का समय है और सबने खाना खाया होगा और आलस से भरा हुआ है. तो तुम बैठे बैठे अपने शरीर को थोड़ा एनर्जी देते हैं. ठीक है, तैयार है सब? प्लीज थम. गुड. तो मैं पहले करके दिखाती हूँ, फिर आप सबको करना है. Cry, laugh, डन. सबको समझ में आया? Everyone ready? Ready? Everybody can unmute themselves. Yes, we are ready. ठीक है. And we would request all the participants to shift to the gallery view from the speaker view. Thank you. करें start? Yes. बिल्कुल. Good. Cry. Laugh. Super excited. Super excited. Super excited. Sad. दुखी होना है. दुखी हो. Silence. Laugh. Hurry. Hurry. जल्दी. Slow. Slow. धीरे. Laugh.
Cry. Loud. Loud. Silence. Pain. Oh. Pain. दर्द. Calm. Calm. Relax. Super excited. Yay! Hurry. 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 Slow. Calm. गहरी सांस ले. Done. Thank you, Nalini. I think all of us have expelled all the energies and, whatever emotions we had. Thanks for the fun energizer. We are now moving to the next part of our event, where we will split into different breakout rooms for brainstorming sessions. And, we'll get guidance from our mentors on the ways ahead and hear real life experience from our community. We want to thank everybody for being with us till here. As much as we'd want everyone to join us for the breakout sessions, we understand that some of you might need to leave due to other commitments. So we would request you to ask us any questions you have in the chat box, or if you have any comment, feedback, suggestion, you're most welcome. Someone from the team will stay back in the main room and answer the questions. I want to especially thank Mr. Sridhar Rajgopal and Mr. Supriya Menon for joining us still here. For the rest of us, we'll soon get the breakout room links and see you there.